جی ابو تراب صاحب شروع کیجیے گا. درس نمبر بتا دیجیے. درس نمبر 29 ہے، سبق نمبر 29 اور صفحہ نمبر ہے 252. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جیسا آپ فرمائے ابھی کہ ہم 30th لیسن پڑھ رہے ہیں، 30واں سبق کا. ہمارے کو پیج نمبر 252 کے لاسٹ پیراگراف سے ریویژن کرنا ہے، یعنی تمیز نسبت وہاں سے شروع کرنے کا ہے اپنے کو. جیسا ہم جانتے ہیں کہ ایک تمیز ذات ہے اور ایک تمیز نسبت ہے. تمیز ذاتی اور تمیز نسبتی. تمیز ذاتی وہ مصدر ہے جو اس سے پہلے کے لفظ کی وضاحت کرتا، جو لفظ کا مبہم تھا اس کو وضاحت کرتا. جیسے شریبت لیٹرن، میں 1 لیٹر پیا. 1 لیٹر پیا تو کیا پیا؟ 1 لیٹر. میں 1 لیٹر ماءن پڑا، پانی پیا. وہ وضاحت ہوگی، اس کی ذات کی وضاحت ہے. اب یہاں پر جو تمیز نسبت ہے یہ پورے جملے کی وضاحت کرتی. بس اتنا ہی فرق ہے سر جو میں سمجھ سکا. آپ یقیناً میرا کریکشن کریں گے کہ تمیز ذاتی اور تمیز نسبتی میں فرق کیا ہے. تمیز ذاتی اپنے سے پہلے ایک لفظ کی وضاحت کرتا اور تمیز ذاتی پورے جملوں کی وضاحت کرتا. جیسا کہ مثال ہے سر، یہ اس میں اپنے پاس جو پیج نمبر 253 پہ مثال دیے ہیں کہ فجرنا عیون الارض، اور ہم نے زمین کے چشمے پھاڑ ڈالے. تو اس میں پورے جملے کی وضاحت ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے حسن خلق طالب، یعنی طالب علم کی تعریف کی گئی تھی کہ وہ اچھا ہے، مگر کس چیز میں اچھا ہے نہیں معلوم تھا. تو یہاں پر حسن خلق طالب یعنی حسن اخلاق میں بہت اچھا ہے. تو یہاں پر یہ فاعل بھی ہے اور پورے جملے کی وضاحت ہو گئی ہے. بس تھوڑی سی پھر یہی تمیز ذاتی اور تمیز نسبتی کی ہمیں جو ہے پریکٹس کی جا رہی ہے پیج نمبر 253 کے ایکسرسائز نمبر 4 میں، کہ ہمارے کو اس میں بنانا ہے کہ پہچاننا ہے کہ اس میں تمیز نسبت کون ہے، کیا ہے، اور تمیز ذات کیا ہے. اس میں انا اکبر من کا سنن، میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. تو یہ ہے سر، یہ نسبت ہے، یہ ذات نہیں ہے. اس طریقے سے اشتری کلو گرامن سکرا تو لترینا لبنا، یعنی مجھے 1 کلو شکر، یعنی 1 کلو گرام شکر خریدو، یہ فعل امر ہے. اور 2 لیٹر دودھ خریدو میرے لیے، یہ ہے ذات ہے. کیونکہ اگر ہم اتنا پڑھ دے کہ اشتری کلو گرامن، میرے لیے 2 کلو خریدو، تو یہ مبہم ہے. مگر آگے سکرا آنے کی وجہ سے اس کی وضاحت پوری ہو گئی کہ میرے لیے 2 کلو شکر خریدو. وہی ہے کہ میرے لیے لترینی خریدو، تو میرے لیے 2 لیٹر خریدو. 2 لیٹر کیا خریدیں گے؟ تو پھر اس کی وضاحت ہو گئی کہ لبنن، کہ دودھ خریدے. اسی طریقے سے جو مشکل سبجیکٹ یہ جو تھا اس میں ایکسرسائز نمبر میں 4 ہے سر، تابل مدرسو نفسا. اگر یہ خالی اتنا بول دیتے ہیں تابا مدرسو بولے تو مدرس ٹھیک ہو گیا، مگر نفسا آ کے اس کی وضاحت کرا. کیا ٹھیک ہو گیا؟ کہ انہیں پڑھنے لکھنے میں ٹھیک ہو گیا یا چلنے میں پھرنے میں ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، نفسا یعنی ٹیچر کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو یہ بھی سر یہ تمیز ذاتی ہے. اسی طریقے سے غرضت بلدیتو شوارعی شجرہ، یعنی میونسپلٹی والوں نے جو نیشنل ہائی ویز ہیں، سڑک ہیں، سڑکوں پر بوئے. غرضت بولے تو بوئے، چونکہ البلدیتو ہے، مونس ہے، اس لیے غرضت کا صیغہ استعمال ہوا. میونسپلٹی والے بوئے، کیا سڑکوں پر کیا بوئے؟ شجرن، جھاڑ بوئے. تو شجرن کیا ہے؟ یہ تمیز ہو گئی اور یہ بھی تمیز ذاتی ہے. اسی طریقے سے ایکسرسائز نمبر
एक्सरसाइज नंबर 5 में बताया गया है कि जुमले देके इसको जो है करेक्ट तरीके से बिठाना है कि जी, अबू तुराब साहब, जी सर, ये कुरान की आयत का तर्जमा कर दीजिए ना, ये दूसरे अच्छे जो से ये आम जो जुमले हैं उसको छोड़ दीजिए, मसला नहीं है। जी सर, जो ये इन मिसालों में जो कुरान की मिसालें आ रही हैं जी सर, उनका तर्जमा कर दीजिए। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, और उनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। ये कुरान की आयत है सर, सूरह माइदा जो कुरान का 5वां सूरा है उसकी 50वीं आयत है। वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मा, और उनके नजदीक कौन अच्छा हो सकता है, कौन अच्छा हो सकता है, कौन अच्छा हो सकता है क्वेश्चन है, मगर किस बारे में, इन व्हाट रिस्पेक्ट बता रही। हुक्मन आके क्या करा, उसकी वजाहत कर दिया कि फैसला करने में। इस लिहाज से ये पूरे जुमले की वजाहत हो रही, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि तमीज निस्बती। उसी तरीके से कुरान की और एक जो सूरह तौबा की है, कल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सरा अम्वालन व औलादन। इसमें बता जा रहे हैं कि तुम लोगों के रंग ढंग वही हैं जो तुम्हारे पेशरों के थे, यानी तुम लोगों से जो पहले के लोग थे उनके थे, वो तुमसे ज्यादा जोर आवर और तुमसे ज्यादा बढ़कर माल और औलाद वाले थे। तो सर इसमें भी यही बता जा रहे हैं कि वो लोग जो तुम लोगों से पहले थे वो लोग ताकतवर थे। किसमें ताकतवर थे, इसकी वजाहत हो रही कि कुव्वतन वो अक्सर अम्वालन व औलादन, यानी वो ताकत में, अक्सर औलाद की कसरत में और कसरत माल में आगे थे। तो इस तरीके से ये पूरे जुमले की वजाहत हो रही, तो इसी को तमीज़ निस्बत बोलेंगे। उसके बाद कुरान की और एक ये है, वाह हसन उलाइका रफीका, कैसे अच्छे हैं ये रफीक। तो सर यहाँ पे हसनो बहुत अच्छे हैं, उसकी ये क्वालिटी के बारे में बताया गया, लेकिन कैसे अच्छे हैं, किन चीजों में अच्छे हैं ये लोग, यानी ये लोग दोस्त हैं। तो रफीकन जो है, चूंकि ये रफीकन मजदर भी है और इस पे आखिर में जो है ये आता, क्या बनना चाहिए, जबर आता, इस लिहाज से ये निस्बत भी है, निस्बत है, और यहाँ पर फाइल की शक्ल में है। उसके साथ एक्सरसाइज नंबर 5 में अब 1 2 3 पढ़ लेंगे इसमें कि जो है, इश्तरैतु मित्रा, मैं एक मीटर खरीदा। क्या खरीदा, इश्तरैतु हरीरा, मैं रेशम खरीदा। इमलाइल कौबा, यानी प्याली को भरो। प्याली को किस चीज से भरो, तो फिर इसकी वजाहत हो रही, इमलाइल कौबा माअन, आ बोलेंगे रुकते रहे तो, कि इसको पानी से भरो। उसी तरीके से पेज नंबर 254 पर भी इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सर, के वही है ऊपर की जो है 6 में भी कुछ नहीं है सर, 7 में जो है ये इसके जो है मजदर बताना है हमको। जैसा शरीबा दिए, शरीबा यानी वो पिया, उसका मजदर होगा शुरबुन। शकरा वो शुक्र अदा किया, इसका मजदर होगा शुक्रुन। और सर ये जहीदा, जहीदा यानी वो जोहद इख्तियार किया, इसका मजदर होगा जहदुन। और जी सर, और सकीरा था सर, सकीरा का मजदर होगा सुकरुन, सुकरुन यानी नशा करना। तो 8 भी जो है ओरल एक्सरसाइज है सर, और 9th जो लास्ट है उसमें अपने को जुमले ताज्जुब के उसमें जो है अपने को बनाना है कि सेंटेंस में अगर कसरतो नुजूमी बोले तो सितारों की कसरत है, मगर उसको अपन जो है जुमले ताज्जुब बनाना है, तो हम बताएंगे माँ कसरत नुजूमी। इसी को कुरान की आयतें हैं कि कुरान की आयत सूरह कहफ की है, अबसिर बिही वस्मा, अबसिर बिही वस्मा है ना, वस्मी जी हो सर, हाँ वो अस्मी, अबसिर बिही वो अस्मी, क्या ही अच्छा देखने वाला और सुनने वाला है। जुमले ताज्जुब बना देना इसको, यानी जिसका सेंस ये है कि जुमले ताज्जुब है। उसी तरीके से अस्मी बहिम वफ्सिर यौमा
यातूनना, यानी जिस दिन वो हमारे पास आएंगे वो लोग क्या खूब देखने वाले और क्या खूब सुनने वाले होंगे। उसी तरीके से सर सूरह बकरा की आयत है, फमस बरहुम अलन्नार, फमा अस्बरहुम, सर जी सॉरी सर, फअज़बरहुम अलन्नारी, कैसा अजीब उनका हौसला है कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, यानी वो लोग इतने डिस्करेज हो गए हैं कि तैयार हैं। जहन्नम जी तैयार हैं भाई। जी जी सर, जी सर सॉरी, बस सर इसी से इसका जल्दी रिवीजन खत्म हो गया सर, क्योंकि शॉर्ट है। जी अबू तुराब साहब, जी सर। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हमजा है ना, जी सर। तो अब सिर बिही व अस्मी, तो वस्मी जो है वो हमजतुल वस्ल नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फेल ताज्जुब का है। जी सर। कितना ही बेहतरीन देखेंगे और कितना ही बेहतरीन वो जी सर। सुनेंगे जब वो हमारे पास आएंगे, ये सेंस है। जी है, जी है सर। तो कितना सब्र करने वाले हैं आग पर, तो मतलब कितना जी सर। जो है उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त है। तो मतलब है कि इनकार पे इनकार किया जा रहा है। जी जी माशाल्लाह। जी सर। तो ये चूंकि मसला क्या है कि थोड़ा सा अल्फाज का, अब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, जी सर। ये सारी चीजें माने और तब्दीली ये सब चीजें आपके इल्म में है। जी सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारवां और मंजिल जो है, मंजिल के करीब है कारवां, और अभी तो 31वां सबक शुरू हो गया, का मतलब ये कि अब बस सबक किताब खत्म हुआ चाहती है और मंजिल पे हम अब उतरने वाले हैं। क्यों? इसलिए कि 30 इतने ज्यादा सबक हम पढ़ लिए, अब कोई चीज ज्यादा बची हुई नहीं है। सिर्फ 4 सबक हैं, 31, 32, 33 और 34। 34वां सबक तो क्या है? 34वें सबक में फर्स्ट बुक में जो आपने पढ़ा है ना, सर्फ और मना सर्फ, सर्फ और मना सर्फ ही कि कुरान से मिसालें हैं, हदीस से मिसालें हैं, और भी मतलब डिटेल्ड है पूरा। और 33 क्या है? 33 में एक सिर्फ पास प्रेजेंट टेंस आप लोग पढ़ के आए हैं, सिर्फ ताकीद के लिए क्या इस्तेमाल होती है अरबी में, जिसको हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में सूरह अल-हाकुमुत तकासुर में, लतुसअलुन्ना सुम्मा लतुसअलुन्ना सुम्मा लतरवुन्ना। तो ये ताकीद जो होती है, लाम ताकीद नून ताकीद, वो पढ़ेंगे। और 32वां सबक जो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। तो इल्ला का जो लफ्ज आता है, जिसको मुस्तस्ना एक्सेप्शन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। और आज का जो सबक है 31वां, तो ये 31वें सबक में भी कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, हाल पढ़ेंगे हम लोग। हाल का मतलब हालत। तो हालत, कोई भी चीज हम बयान कर रहे हैं तो वो किस हाल में पेश आई, वो कैसे हुई। तो 2 चीजें याद रखनी होती हैं इस जुमले के अंदर, कि एक तो लफ्ज आता है जो हालत को बयान करने के लिए, जैसे पीछे कुरान मजीद की मिसालें दी हैं, तो उनमें से एक मिसाल है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी जो सूरह नूह में है, रब्बिग़फिर ली वली वालिदैया वलिमन दखला बैतिया मुमिना। ऐ अल्लाह आप मेरी मगफिरत फरमाइए, ऐ अल्लाह मेरे वालिदैन की आप मगफिरत फरमाइए, और उसकी मगफिरत फरमाइए जो मेरे घर में दाखिल हो। लेकिन घर में दाखिल हो खाली नहीं है, एक कंडीशनल है, वहां सिफत उन्होंने बयान की, हाल बयान किया, वलिमन दखला बैतिया मुमिनन, जो मेरे घर में मोमिन होकर दाखिल हो। तो यहाँ पर मोमिन होना, तो ये जो है हाल है कि वो घर में आएगा, लेकिन घर में हर कोई आएगा, लेकिन मोमिन बन के जो आएगा उसको जो है आप मेरी उसकी भी मगफिरत फरमाई। तो यहाँ पर जो है मोमिनन का जो लफ्ज हम देख रहे हैं, ये हाल बयान कर रहा है। तो हाल के अंदर 2 चीजें हमको गौर करनी होती है। पहली तो चीज ये कि हाल किस फॉर्म में आ रहा है, हाल नॉन के फॉर्म में आ रहा है, वर्ब के फॉर्म में आ रहा है, और फिर ये कि जमीर की सूरत में आ रहा है, वाव की सूरत में आ रहा है। ये सारी चीजें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ उसको
जो हालत बयान हो रही है तो वो किसकी बयान हो रही, तो यहाँ पर वलीमन के लिए है, वो शख्स जो दाखिल हुआ मोमिन होकर, तो यहाँ पर हाल कौन है, दाखिल होने वाला है। तो आम तौर पर जो साहिब हाल उसको बोलते हैं, एक तो हाल हो गया, लेकिन साहिब हाल यानी जिसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, द पर्सन हु विल बी डिस्क्राइब्ड। तो फाइल भी हो सकता है, मफूल भी हो सकता है, मुब्तदा भी हो सकता है, खबर भी हो सकती है, ये सारी तफसील है, ठीक है। और अच्छी चीज ये है कि यहाँ जो थर्ड बुक में आप देख रहे हैं मुस्तकिल तौर पर कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की वो मिसालें, कुरान मजीद की वो आयत करीमा जो आम तौर पर हम पढ़ते हैं, समझते भी हैं, तो उसको जो है क़वाइद की रोशनी में और उसके जो है मानी के एतबार से हम लोग जो है गहराई के साथ समझ रहे हैं, है ना जी। जी कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र एहसान है। वो जा अबाउम ईशान यबकुन, वो भी बहुत गुना है। हाँ, वो जाऊ अबाहुम ईशाई यबकुन, वो जाऊ और वो आए, अबाहुम अपने वालिद के पास, ईशान ईशा के वक्त, यबकून रोते हुए। तो यहाँ पर वो शाम के वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए थे, शाम तक सब प्लान किए, फिर वो रात में जब आए रोते हुए आए। तो यहाँ पर यबकून मुजारे जो है उनकी हालत को बयान कर रहा है कि आ रहे हैं तो कैसे, रोते हुए, ठीक है। तो सबक पढ़ेंगे हम लोग, मैं सबक के अंदर भी मिसालें बताऊंगा, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कहीं कोई डाउट है तो फिर हम लोग मुकम्मल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अद्दरसुल हादी व सलासून, 31वां सबक। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 11, 21 और 31, 41, तो उसके अंदर जो है थोड़ा सा हमको एक लफ्ज जो है समझना होता है, वो क्या है, वो है हादी, ठीक है। बकिया में क्या होता है कि वो लफ्ज जो है वो सानी, सालिस, जो कॉमन हम लोग पढ़ चुके हैं वो होता है, ठीक है। सिर्फ हादी, हादी का एक लफ्ज हम याद रखेंगे, तो 31वां हो गया, 41वां के लिए अल हादी वल अर्बाऊन होता है जी। अल मुदर्रिस उस्ताद कह रहा है, मालका, माँ लका, ये अलग है, माँ अलग है, लका अलग है। ये चीज कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं सूरतुल जिलजाल में, कुरान मजीद में सूरत जिलजाल में हम पढ़ते हैं, क़यामत जब आ जाएगी और जब इंसान जो है देखेगा कि जमीन जो है अपने अंदर के खजाने निकाल के फेंक रही है, हर हर चीज बयान कर रही है, तो वो इंसान उस वक्त क्या है, वक़ाल अल इंसानु मालहा, तो इंसान कहेगा ये जमीन को क्या हो गया, ये चीज ये क्या हो रही है। तो माँ अलग है, लहा अलग है। तो माँ लका, तो माँ माने क्या, लका माने तुमको, माँ लका तुम्हें क्या हुआ है, मुतअबन थके हुए हो, मुतअबुन माने थका हुआ, तो माँ क्या हुआ कि तुम थके हुए हो अहमद। तो यहाँ पर मुतअबन क्या है, हाल है। अहमद कह रहा है, समिअतु रनीनल जरसी व अना फी गुरफती, मैंने घंटी के बजने की आवाज को सुना इस हाल में कि मैं अपने कमरे में था। अब यहाँ पर वा आना, इस हाल में के, वाव हालिया हम लोग पढ़ चुके हैं बुक 2 के अंदर, कि वाव जो है वो हाल को बयान करने के लिए आता है कि इस हाल में के मैं, तो सिर्फ लफ्ज वाव जो है वो हालत को बयान कर रहा है। इस हाल में कि मैं अपने कमरे में था, फजी तो मुसरियान, तो मैं जल्दी से आया। तो जी तू के मतलब हो गया आ गया, मैं आया, लेकिन किस हाल में, जल्दी करते हुए। फतइब तू, तो मैं थक गया, तो भागते हुए आ गया, मैं तेज तेज आया। तो यहाँ पर मुसरियान ये भी हाल बयान कर रहा है, किसका, जीतू का, फाइल का। अल मुदर्रिस उस्ताद पूछ रहा, आइना समीरुन, समीर कहाँ है, अलीयुन, ज़ाअत साअतुहु फखरज यबहसु अन्हा, कि उसकी घड़ी गुम गई तो वो निकला है उसको ढूंढने के लिए।
اب यहाँ पर देखिए यबहसु अन्हा, तो लफ्जी तर्जमा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फखराजा, तो वो निकला, यबहसु अन्हा, वो उसको ढूंढ रहा है। लफ्जी तर्जमा तो ऐसे ही होगा, लेकिन चूंकि अब हम समझ रहे हैं कि ये जुमला यहाँ पर यबहसु उसकी हाल को बयान करने के लिए आया, तो प्रेजेंट टेंस भी हाल बयान करने के लिए हो सकता है, जैसे ऊपर में वाव आया है, तो फखराज यबहसु अन्हा का मतलब वो ढूंढने के लिए निकल गया। अल मुदर्रिस व ऐन ज़ुहैरुन व सदीक़ाहु, ये जुमला जरा गौर से देखिए आप, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, हमारे कोई भी साथी जो है बताएंगे कि हमको ये देखना है कि हमारे कितने साथी हैं जो जबान को समझ पा रहे हैं, कि इसलिए कि जबान आप समझेंगे तो आप हर चीज का तर्जमा कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। और मेन जो हम जबान सीख रहे हैं उसका मकसद क्या है कि कुरान और हदीस की और जो इस्लामी जो हमारा असल सोर्स है उसकी जो है की लैंग्वेज है अरबिक। तो आप जो है जबान को समझेंगे तो फिर ऐसी सूरत में जब कभी आप कुरान पढ़ेंगे, जब कभी हदीस आपकी नजर से गुजरेगी, आप समझ पाएंगे कि भाई हाँ ये चीज है। ये देखिए यहाँ पर ये जुमला मैं पहले सिर्फ सवाल का तर्जुमा कर देता हूं, आगे आपको पढ़ना है। व ऐन ज़ुहैरुन व सदीक़ाहु, कि ज़ुहैर कहाँ हैं और उसके दो दोस्त कहाँ हैं, व सदीक़ाहु। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर मैं क्या पढ़ूंगा, हम क्या पढ़ेंगे, रअयतुहुम के बाद मैं क्या पढ़ूंगा, खारिजीना। गुड गुड, शाबाश। और बोलिए और दूसरे साथी भी बोलिए, दूसरे और भी बोलिए जी। अमतुल्लाह क्या पढ़ेंगे, अबू तुराब साहब क्या पढ़ेंगे? बिल्कुल सही बोले सर, खारिजीना पढ़ेंगे क्योंकि हालत नस्ब में। ठीक है, ओके। और बताइए, और कौन है? खारिजीना ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम जी। समीना साहब खारिजीना ही होगा जी। फारिया साहब बताइए कि आपने खारिजीना क्यों कहा, क्यों क्यों हम खारिजीन बोलेंगे? मेरे ना मंसूब भी लिया है ना, मंसूब भी लिया है, ओके। और देखिए कुरान मजीद में हम लोग पढ़ते हैं ना कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, वमा हुम बिखारिजीन मिन्हा, कि वो अजाब से निकल नहीं पाएंगे। तो वहां पर हम खारिजीन पढ़े कुरान में। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसकी वजह या नून वजह वो नहीं है, ये तो आपने कहा जमा है। ये वजह ये है कि यहाँ पर जुहैर एक है, ओके, और उसके साथ उसके दो दोस्त हैं, ओके। जमा हो गई मारना। हाँ, ये है जवाब। अब जमा होने की वजह से हम खारिजीन बोल रहे हैं। अगर कोई साथी ये समझे कि खारिजैन बोले तो क्या हो गया कि वो सदीक के बारे में बहुत बात हो रही है। यहाँ सदीक और जुहैर दोनों के बारे में बात हो रही है, ओके। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खारिजीन जो है ये हालत को बयान कर रहा है, किसकी, इन सब की, कि रअयतुहुम, मैंने उन सब को देखा है कि वो निकल रहे हैं रेस्टोरेंट से। अल मुदर्रिस, उस्ताद कह रहा, इक़राइल आयाती या अहमदु, ऐ अहमद आयतें पढ़ो कुरान मजीद की। अब यहाँ आगे का जुमले पे आप गौर करिए, यकीफु अहमदु, अहमद खड़ा होता है, यकीफु अहमदु, अहमद खड़ा होता है। तो यहाँ पर उस्ताद कह रहा इक़रा जालिसन, इक़रा जालिसन, बैठकर पढ़ो। तो यहाँ पर हुक्म भी है और साथ में जो है बताया जा रहा है कि साहब कैसे पढ़ना है, बैठकर पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद ने कहा कि बैठ के पढ़ो, तो अहमद कह रहा है उहिब्बु अन अक़रा वाक़िफ़न, अहमद कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं खड़े होकर पढूं।
वाकिफन क्या हो गया, हालत को बता रहा है कि मैं तो जो है खड़े होकर पढ़ना ये चाहता हूँ, ठीक है। आगे है यस्तईदु व युबस्मिलु, वो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ता है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो वो अऊज़ु बिल्लाह पढ़ता है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, कहाँ से तर्जमा किया हमने? जी बताइए। यस्तईदु फेल मुदारे है ना, और फिर यहाँ आप देख लीजिए कि सारी इस्तेमालात को आपने पढ़ लिया, अल इस्तिआज़तु वल बस्मलतु पढ़ लिया, बाद मा यस्तईदु पढ़ लिया, व यक़ूलु तअव्वुदु व तस्मीअ ऐसे भी पढ़ लिया, ठीक है। अब कुरान मजीद की आयतें हम लोग पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली आयत करीमा है सूरह नूह की, आयत नंबर 28 है। रब्बिग़फिर ली व लिवालिदैया व लिमन दखल बैतिय मुमिना, ऐ मेरे परवरदिगार आप मेरी मगफिरत फरमा दीजिए और मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दीजिए, और उस शख्स और उसकी भी मगफिरत फरमा दीजिए जो मेरे घर मोमिन होकर दाखिल हो, जो मेरे घर में आए मोमिन होकर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोमिनन, मोमिनन क्या है, हालत को बयान किया जा रहा है। आगे तो जो दोनों के लिए मगफिरत है वो वहां कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन घर में जब आएगा अजाब इलाही आएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि अल्लाह मैं इन काफिरों को समझा समझा कर इनको जो है राह हक की दावत दे देकर थक गया हूँ, अब तो अपना अजाब नाजिल कर दे। वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, कि किसी एक घर को भी न छोड़, पूरे तबाह करके छोड़ दे। तो हजरत नूह ने वहां यही भी दुआ की कि अब इस वक्त से पहले कोई अगर बंदा मोमिन होकर मेरे घर पनाह ले ले तो उसको भी आप मगफिरत फरमा दी। तो मोमिनन यहाँ पर हाल है, और दखला वो जो है वो साहिब हाल। और इस आयत करीमा में जो बहुत सारी चीजें हमारे लिए, हमारे सबक हैं जो पढ़ चुके हैं, आप लोग समझ चुके हैं। एक तो हो गया कि रब्बी है, कि रब्बी असल में क्या है, या रब्बी। या रब्बी होता है। हाँ गुड। तो असल में पूरा है या रब्बी, तो या का भी चला गया और रब्बी ऐ मेरे परवरदिगार। तो यहाँ दुआ के अंदर कुर्बत बताना होता है। और दूसरी चीज हमको ये समझ में आई कि गफारा, क्या जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब? सिला। गफारा का लाम इस्तेमाल करें, गफारा लहू, अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा गफिर लका, अल्लाहुम्मा गफिर लना, ठीक है। तीसरी चीज ये समझ में आई कि अल्लाह से मगफिरत के मांगने में प्रियोरिटी किसको होगी? अपनी अपने अपनी जात को, अपनी जात। पहले फर्स्ट क्या है? अपनी जात, मैं कि साहब मैं अपनी तरफ देखूं। हम दुनिया की इस्लाह की फिक्र के लिए चले हैं, लेकिन हम अपनी जात को इग्नोर कर देंगे तो फिर ये नबवी मिशन के खिलाफ होगा। और दूसरी चौथी चीज हमको समझ में आई कि आदमी अब अंग्रेजी की चीजें हमको बहुत अच्छी समझ में आती, चैरिटी बिगिंस एट होम बोल के अच्छे काम कहाँ शुरू होते हैं? घर से। तो भाई घर में तो पहले वालिदैन हैं। और यहाँ चीज और भी इस बात समझ में आई कि साहब एक आदमी है जिसके माँ बाप भी हैं और औलाद भी है, तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए हमको? माँ बाप प्रेफरेंस दीजिए। हाँ, ये सब चीजें हैं। देखिए ये सब चीजें क्या है कि आपसे कोई नहीं बोलेगा, ये कुरान की आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप बताएंगे, आप कहेंगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि उनकी औलाद भी उस वक्त मौजूद है, उस वक्त उनके वालिदैन भी हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले अपनी जात, फिर वालिदैन, फिर औलाद, ठीक है। ये सब चीजें हैं। और गहराई में जाना चाहें आप तो यहाँ पर होता है वालिदैया, और कुरान मजीद की जो टर्मिनोलॉजी है ना, अबावैया, दो भी है ना। अबावान बोले तो दो बेटे हैं अबवान, अबवैया मेरे बेटे। नहीं, अबुन बोले तो बेटा होता, बाप होता है। बाप बाप वालिदैन, दो वालिद। अब उन वालिद साहब को कहेंगे।
हाँ, एक चीज आज बताता हूँ. देखिए कुरान मजीद में अबवान बोले तो पेरेंट्स होता है, वालिदैन बोले तो भी पेरेंट्स होता है. ठीक है, क्लियर है? माँ बाप. माँ बाप. अबवान बोले तो भी माँ बाप, वालिदैन बोले तो भी माँ बाप. जरा गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ कि ये कुरान की बलागत, ये कुरान की गहराई है. और आप हजरात अब चूंकि खत्म पे हैं, सबक भी हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं. देखिए वलादा, वलादा की निस्बत किसकी तरफ होती है? वलादा बेटे बेटे की तरफ होती है ना. नहीं नहीं, आप जल्दी जवाब मत दीजिए, जरा पहले सुनिए, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ. जी. वालाद विलादत किधर किधर से होती है? वालदैन की तरफ से. हाँ, अबू सही साहब ने सही कहा. विलादत वालिदा की तरफ निस्बत है. अब अबुन अबुन उबुवत जो है वो, जो आप कहते हैं कि बाप बापपन, तो वो अबुन के लफ्ज में है. और विलादत किस तरफ जुड़ गई? वालदा की तरफ. हाँ, तो याद रखिए कि कुरान मजीद ने जहां कहीं इस्तेमाल किया है ना, बहुत बहुत माने हैं. कि कुरान मजीद जब कहता है वली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन, वली अबवैहि सूरह निसा में है, हम लोग तक़सीम जायदाद के लिए पढ़ते हैं वली अबवैहि के माँ बाप के लिए, लेकिन वहां पे वालिदैन का लफ्ज नहीं आया. वहां लफ्ज आया अबवैन, के बाप की प्रियोरिटी दी जा रही. यहाँ पे वालिदैन कह के बताया जा रहा है कि माँ की तरफ से जो निस्बत जुड़ रही है विलादत की, कि वो बताया जा रहा है. समझ रहे ना? अल्लाह अकबर, अल्लाह करे कि समझ में आ जाए. खैर चलिए. तो यहाँ पर इस आयत करीमा में जो हमको बहस, ये जो मिसाल के तौर पे इन्होंने पेश की है मोमिन के एतबार से, ठीक है. और दूसरी मिसाल है सूरह यूसुफ आयत नंबर 16, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके वालिद मोहतरम हजरत याकूब से गलत बयानी करके ले गए थे. और दिन भर में जो है उन्होंने सारी साजिश की और ले जाकर कुएं में डाल दिया. और फिर शाम में आते हुए क्या किए, खाली खून लगा कर आए. और आते हुए जब कब आए, बनावटी रोना रोते हुए आए. वह जाऊ, और वो आए अबाहुम अपने वालिद के पास, ईशान शाम के वक्त, यबकून रोते हुए. और अभी जो मैं आपने कहा ना कि यहाँ पे देखिए वह जाऊ वालिदाहुम नहीं आए, देख रहे हैं? यहाँ पर वह जाऊ क्या लफ्ज आया? अबा. अबाहुम. अबाहुम. हाँ, कि बाप की जो होती है, माँ तो है, लेकिन बाप का जो अटैचमेंट था, बाप जो हजरत यूसुफ से जो है उनका लगाव था, और बाप को जो अपने बेटों को देखकर होता है, तो वो बाप को एड्रेस किया. माँ तो है अपनी जगह, लेकिन यहाँ का लफ्ज, ये सब चीजें हैं साहब, इतनी गहराई है कि अल्लाह अकबर. कि कुरान पढ़ेंगे आप, फिर उठेंगे नहीं अपनी जगह से, सारी दुनिया को जो है बताते जाएंगे कि देखो भाई, हर चीज का मजा हमको मालूम है, रसगुल्ला का मजा मालूम है ना हमको, जो है दुनिया की चीजों का मजा मालूम है. मामूली मामूली चीजों के मजे साहब, आज मैं देख के ताज्जुब होता है, बच्चे घंटों मोबाइल लेके बैठे, क्या कर रहे भाई? खाली साहब सर्फिंग कर रहे, ब्राउजिंग कर रहे. तो ये चीजों के मजे लग गए, ये असल मजा तो यहाँ है, असल हकीकत तो ये, ठीक है. तो यबकून का जो लफ्ज है ये हाल बता रहा है, वो रोते हैं. लफ्जी तर्जमा करते हुए क्या बोलेंगे हम लोग? वो रोते हैं. लेकिन यहाँ कहेंगे हम कि वो अपने वालिद के पास शाम के वक्त आए रोते हुए. क्यों? इसलिए कि यहाँ यबकून उनकी हालत को बयान कर रहा है. और यबकून का लफ्ज आकर जो है मुजारे आ गया, तो इसके अंदर निस्बत जो है जाऊ जमा है, तो यबकून भी जमा है. तीसरी मिसाल है सूरह बकरा आयत नंबर 253. ये वाकया है उस वक्त का जब हजरत बनी इसराइल जो है निकले थे अल्लाह के हुक्म पर जिहाद में, ठीक है. कि उन्होंने कहा था कि हमारा कोई एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए कि जिनकी निगरानी में हम लोग ये अमालिका जो कौम है ये फलस्तीन में, उनसे हम लोग लड़ेंगे. तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो है तालूत को जो है बादशाह बनाया, और उनकी निगरानी में उन्होंने लड़ी. तो उस वक्त जब वो निकले थे तो वो हजारों की तादाद में थे.
अलम तरा इलल लदीना, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को, खरजू जो निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहुम उलूफुन इस हाल में कि वो हजारों हैं, इस हाल में कि वो हजारों थे। तो यहाँ पर देखिए कि वाव जो है वो हाल के लिए बताने के लिए आया, वो और हैं हजारों बोले तो कोई बात नहीं हुई, वो थे हजारों। तो ऐसी सूरत में उनकी हालत हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में वो निकले। तो हम जो है वो जमा के लिए आ गया, तो दोनों चीजें जमा हो गई, वाव भी और उनको जोड़ने वाली जमीर भी। और चौथी मिसाल है सूरह हुजरात आयत नंबर 12, और इसको भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन, क्या तुम में से कोई ये बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाए, वो अपने भाई के गोश्त को खाए इस हाल में कि वो मुर्दा हो। तो लहमा अखीही तो ये तो हो गया हाल। मैतन कैसा है, मुर्दा। तो हालत बयान करने के लिए मैतन का लफ्ज आया है, और जो इस्म है, ठीक है। और ये आयत करीमा आई है कहाँ पर, गीबत के बारे में, कि आदमी जो है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत करता है, तो वहां पर वो इतनी बदतरीन बात उसको कही गई है। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल मुदर्रिस इक़राइल हदीस या अली, ए अली हदीस पढ़ो। अली कह रहा है अन अबी मूसा अशअरी, हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, काल उन्होंने कहा, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी सफ़ा नंबर है 256, इज़ा मरीदल अब्दु औ साफरा कुतिबा लहू मिस्लु मा काना यअमलु मुकीमन सहीहन, कि जब कोई बंदा बीमार हो जाता है या वो सफर करता है तो उसके लिए लिखा जाता है उसी तरह का अमल जो वो करता था, मा काना यअमलु, जो वो करता था, मुकीमन इकामत की हालत में, यानी घर पर रहने की हालत में, सहीहन सेहतमंद होने की हालत में। तो इस हदीस मुबारका से ये पहली बात तो ये मालूम हो गई कि आदमी के अपने कोई मामूलात हैं तो वो मामूलात होने चाहिए। तो इसके अंदर ये बात खुद मालूम हो रही ना, कि मतलब ये कि एक आदमी जो है अपने घर पे है, सेहतमंद है, तो उसके अपने मामूलात हैं कि कुरान मजीद के पढ़ने का मामूल है, कुरान मजीद के समझने का मामूल है, हदीस नबवी के पढ़ने का मामूल है, दीगर और भी मामूलात। दूसरी चीज ये समझ में आ गई कि आदमी जो है हर वक्त सेहतमंद ही नहीं होता, हर वक्त घर पे ही नहीं होता, बीमारी भी होती है, सफर भी दरपेश होता है। तो ऐसी सूरत में अगर उस बीमारी में और सफर की हालत में उसके वो मामूलात और उसका वो सेटअप, वो शेड्यूल अगर ना हो पाए, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि अगर वो होता सेहतमंद और वो होता अपने घर पे तो वो काम अंजाम देता, लेकिन चूंकि बीमारी और सफर में वो पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं, वो सहूलतें नहीं होती हैं, वो आदमी चाह कर भी नहीं कर पाता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह के यहाँ वो अज्र लिखा जाता है। ये तो हो गया हदीस मुबारक। इस हदीस में जो है जो पेश की गई है मिसाल, वो है माकाना यअमलु मुकीमन सहीहन, कि इकामत की हालत में और सेहतमंद होने की हालत में। तो यहाँ पर मुकीमन और सहीहन ये जो है इस्म के एतबार से हैं और ये हाल है। और ये किसका हाल है, अब्द के हैं, बंदा, कोई भी बंदा। बंदे का मतलब बंदी भी है इसके अंदर, तो बंदा तो जो है प्राइमरी है, तो बंदी के भी अपने जो मामूलात हैं वो भी अजर व सवाब लिखा जाता है। रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको रिवायत किया। अल मुदर्रिस उस्ताद कह रहा है, इक़राइल बैत या अबा बकरी, ऐ अबू बकर शेर पढ़ो। बैता का मतलब शेर। अबू बकर, हत्ता मता अंत फी लहबिन व फी लअबिन वल मौत नहवक यहवी फातिहन फाहु। अबू बकर कह रहा, हत्ता मता, कब तक, हत्ता बोले तो तक होता है ना, हत्ता मतलाइल फज्र, तो हत्ता तक, मता कब, कब तक, अंता तुम, फी लहबिन व फी लाबिन, तमाशे और खेल में लगे रहोगे, वल मौत नहवा का, और मौत तुम्हारी तरफ, नहवा बोले तो तरफ, टुवर्ड्स यू, वल मौत नहवा का, मौत तुम्हारी तरफ, यहवी
चल रही है, फातिहन फाहू, अपना मुंह खोले हुए, फातिह मतलब खोला हुआ, फा बोले तो मुंह, तो फमुन होता है असल में, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग इसी सबक में आखिर में पढ़ेंगे कि फमुन था वो जाके कैसे बनता है। तो इस हदीस इस शेर के अंदर जो है वल मौतु, इस हाल में के मौत, तो वाव जो है वो हाल के लिए बयान करने के लिए आता है, तो ये वाव हालिया है। और दूसरा इसी शेर के अंदर फातिहन फाहू, कि वो मौत इस हाल में कि अपना मुंह खोले हुए है, अपना मुंह जो है वो ओपन करे हुए तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। तो ये शेर के अंदर दोनों चीजें आ गई, ठीक है। यरिनुल जरसु, घंटी बजती है, वो यखरुजुल मुदर्रिस, और मुदर्रिस निकल रहा है, काइलन, ये कहते हुए। अब यहाँ पर देखिए ना, ये जो किताब की तरतीब बनाई है ना बंदे ने, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही मतलब है कि सिस्टमेटिक, और बहुत ही जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इजी है कि यहाँ पर काइलन लाकर ये बताया है कि उस्ताद निकल रहा है किस हाल में, ये कहते हुए वफ़क़कुमुल्लाह, अल्लाह तुमको तौफीक दे। और यहाँ पर भी जो कि दुआइया जुमला है, तो अरबी में मादी के फॉर्म में आप लाते हैं, वफ़क़कुमुल्लाह, अल्लाह तुमको तौफीक दे, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और अल्लाह की तरफ से सलामती और रहमत और उसकी बरकतें हो तुम पर। आगे बढ़ने से पहले कि हमारे ये जो हाल को हमने पढ़ा है ना, तो दरअसल हाल जो है वो जवाब होता है कैफा का, कैसा, ये कैसे हुआ, ये कैसे है। तो कैफा का जवाब होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है हाल की सूरत में, ठीक है। ये सबक से रिलेटेड 3 सवालात हैं, अजीबनी लसीलतिल आती, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। लिमाजा कान अहमद मुतअबन, जी कौन बोलेंगे? काना मुतअबन लिअन्नहु जाअ मुसरिअन, शाबाश, क्योंकि वो थका हुआ था, माशाल्लाह, गुड गुड, जल्दी में था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लिमा खरज समीरुन, खरज समीरुन वखरज यबहसु अन्हा, ज़ाअत साअतुहु खरज यबहसु अन्हा, बहुत अच्छे। मनिल्लज़ी क़रअल बैता, अबू बकर अल्लज़ी क़रअल बैता, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। एक्सरसाइज नंबर 2 हम लोग मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो जुमले के सबक में हमने पढ़ा है कि जी तो मुसरियान, मैं तेजी से आया, मैं जल्दी करते हुए, मैं जल्दी में आया। हुना मुसरियान हालुन, यहाँ जो मुसरी जो लफ्ज है वो हाल है। अब हाल के बारे में कहते हैं कि अल हाल वस्फुन फजलतुन, वस्फुन फजलतुन, तो फजलतुन का मतलब होता है जायद, फजलतुन माने एक्स्ट्रा, एडिशनल। वस्फुन फजलतुन एक एडिशनल सिफत होती है, यूज करो जो बयान की जाती है, ली बयानी हयाती साहिबी, कि उसके साहिब के हालत को बयान करने के। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखें, जा हामिदुन राकिबन दर्राजतहु, कि हामिद अपनी साइकिल पर सवार होकर आया। तो आप कोई भी पूछेंगे भाई कैफा जा हामिद, हामिद कैसा आया, तो हामिद अपनी गाड़ी पर सवार होकर आया। तो यहाँ पर हामिद की उस सिफत को बयान कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा जो है उसके बारे में। इस तरह तो दजाजत मजबूहतन, मैंने मुर्गी खरीदी ज़िबाह की हुई, तो यहाँ पर जो है मजबूहतन वो दजाजा की सिफत है। हादा उस्तादुना दाखिल अल फसली, ये हमारे उस्ताद हैं जो क्लास में दाखिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर दाखिलन, मजबूहतन, राकिबन, ये तीनों भी हम देख रहे हैं मंसूब हैं, और हाल भी जो है मंसूबात में है, यानी जबर जिस पर होता है। अब ये अलग चीज है कि उसका फॉर्म कभी नाउन की सूरत में होता है, कभी वर्ब की सूरत में होता है, कभी जमीर की सूरत में होता है, वो डिटेल आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये तो हो गई हाल, ठीक है, ये तो हो गई हालत। और जो हाल जिस चीज का बयान किया जाता है उसको कहते हैं साहिब हाल। तो वो साहिब हाल क्या हो सकता है कि जिसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो या तो फाइल हो सकता है, इम्मा फाइलुन नहवा खरजत तुल्लाबु मिन क़ाअतिल इम्तिहानी मसरूरीना, के तलबा इम्तिहान हाल से निकले खुश खुश। तो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं मसरूरीन, तो ये किसके बारे में कह रहे हैं?
तुल्लाब तुल्लाब के बारे में, और तुल्लाब क्या है? फाइल है। व इम्मा नाइब फाइल, या फिर ये कि वो नाइब फाइल भी हो सकता है। नाइब फाइल किसको कहते हैं? कि जो पैसिव यानी मजहूल फेल का जो फाइल होता है उसको नाइब फाइल कहते हैं। जैसे युकलुल लहमु मतबूखन, गोश्त जो है पकाकर खाया जाता है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर युकलु का जो फेल मजहूल है, जो फाइल आया है वो नाइब फाइल कहलाते हैं। और लहम की जो है सिफत लाई गई है मतबूखन, पेज नंबर 257 पर है। व इम्मा मफऊलुन बिही, या फिर ये कि वो मफऊल बिही हो। जैसे इश्तरैतुल किताबा मुजल्लदन, मैंने किताब खरीदी मुजल्लद, जिल्द की हुई, बाइंडिंग की हुई। तो मुजल्लद क्या हो गया? मफऊल की सिफत है, मफऊल की हालत को बयान कर रहा है। यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है। आगे जरा थोड़ी तवज्जो दीजिए, बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आएगी तो फिर पूछेंगे। यहां तक तो बात साफ है कि साहब फेल फाइल इसकी चीजें जो है वो हालत बयान की जा रही। आगे जो कह रहे हैं कि खबर की भी सिफत हालत होती है, तो वो है वह इम्मा खबर, या एक खबर हो, जैसे हादल हिलाल तालिउन तालिअन, ये जो क्रिसेंट है, ये जो चांद है, ये तुलू होने वाला है। तो हिलाल, हिलाल की जो है वो सिफत हो गई, हिलाल की हालत बयान कर रहे हैं जो कि खबर है। ठीक है। और पीछे आपने पढ़ा है कि हाजा अल हिलालु, जब हम कह रहे हैं हाजा हुवल हिलालु, हाजा हुवल हिलालु तालिअन, कि ये जो चांद है ये तुलू होने वाला है। तो खबर की हालत बयान हो रही। अब यहाँ आगे जो है मुब्तदा की भी खबर होती है, वो थोड़ी सी तवज्जो आप दीजिए, बात समझ में आएगी। और फिर मैं इंशाल्लाह बता रहा हूँ। मुब्तदा की भी जो है हालत बयान होती है। जैसे दखलतु अलल मुदीरी, कि मैं हेडमास्टर के पास दाखिल हुआ। व इंदहु मुदर्रिसुना जालिसन, इस हाल में कि उनके पास हमारे मुदर्रिस बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए मुदर्रिसुना ये है मुब्तदा। आप कहेंगे कि साहब मुदर्रिसुना तो बाद में आया है ना, लेकिन पीछे हमने पढ़ा है कि जब खबर जो है शिबे जुमला हो, शिबे जुमला का मतलब है कि ज़र्फ हो या फिर जार मजरूर हो, तो ऐसी सूरत में खबर बाद में के बजाय पहले कर देते हैं। तो उसकी मिसाल हो गई व इंदहू। ठीक है। तो मुदर्रिसुना ये मुब्तदा है और उसकी जो है हालत बयान की जा रही है जालिसन। ठीक है। यहां तक आपने पढ़ लिया है। एक छोटी सी चीज पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद सवाल जवाब रखेंगे और आगे की चीजें कल पढ़ेंगे। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी है ना, कि एक तो दो चीजें पढ़ी हैं असल में, एक होता है हालत और दूसरा होता है कि पर्सनालिटी यानी साहिब हाल। तो ये कह रहे हैं कि अल अस्लु फी साहिबिल हाली अन यकून मारिफतन, कि असल रूल ये है कि साहिब हाल मारिफा होना चाहिए, कि जिसकी हालत हम बयान कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो है मारिफा प्रॉपर नाउन होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। वक़द यकून नकीरतन, साहिब हाल क्या है, कभी कभी वो नकीरा भी होता है। कब? इंद वजूदिन मुसव्वगिन, कि उस वक्त जब कोई करीना पाया जाए। मुसव्वग का मतलब होता है कि वहां पर कोई जो है आपके लिए सिंबल हो, वहां पर कोई सिम्टम हो, वहां पर कोई जो है करीना हो, वहां पर कोई जो है आपको जवाज वहां कोई मौजूद हो, कोई चीज पाई जाए, तो ऐसी सूरत में साहिब हाल नकीरा भी हो सकता है। और मुसव्वग, वजूद मुसव्वग क्या है, कि वो करीना क्या है, तो कह रहे हैं वह हुआ अहद उमूरी अरबाती, कि वो चार चीजों में से कोई एक होना है। कि चार चीजें हैं, चार करीने हैं, कि उन चार करीनों में से कोई एक करीना भी पाया जाएगा, तो वहां पर आपको साहिब हाल को नकीरा लाना दुरुस्त है। ठीक है। अलबत्ता ये चीजें आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी करीना क्या चीज को बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा। हाँ, करीना का मतलब होता है कि वहां पर कोई जो है
آپ کے لیے قرینہ کا مطلب کہہ لیجئے کہ کوئی لاجک ہے, کوئی ریزن ہے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے تمنا خاتون جی کہ قرینہ کا مطلب ہوا ریزن یا لاجک. جی السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مولانا فرسٹ لیسن نمبر اسٹارٹنگ میں فرسٹ جو مالا کا جو آ رہا مولانا استفہامیہ ہوگا مولانا. ما استفہامیہ ہو گیا, ما استفہامیہ ہو گیا, لا لکا ہو گیا, تیرا تیرا تجھے. مولانا پیج نمبر 255 پہ فرسٹ پیج پہ یہ جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن, تو یہاں پر میتن حال ہے اور صاحب الحال کیا ہوگا؟ اخی ہوگا. لحمہ لحمہ یہاں پہ صاحب حال. ایک منٹ, بہت اچھی چیز. تو صاحب حال یہاں پر جو ہے مضاف, یہ دونوں مل کے ہیں لحمہ اخیہ, جی میم. اس لیے کہ اخی بولیں گے تو پھر بھائی کو کھا رہا ہے نا. جی جی قرآن کہہ رہا ہے کہ گوشت, بھائی کے گوشت کو کھا رہا ہے. تو صاحب الحال ہوگا بھائی کا گوشت. ہاں, یہ لحمہ اخی ہی یہ صاحب حال ہوگا. جی جزاک اللہ. الحمدللہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ میں نے پورے 34 سبق تک دیکھ لیے ہیں, تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ انشاءاللہ العزیز بڑی آسانی سے ہمارا یہ کل سبق نمبر 31 مکمل ہو جائے گا, اور انشاءاللہ العزیز اسی ہفتے انشاءاللہ 32 بھی ہو جائے گا, اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ دونوں جو 33 اور 34واں سبق ہے وہ پورے ہو جائے گا. اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بالکل رینڈملی جیسے یہ سبق پڑھ رہے ہیں آپ, ویسے رینڈملی, مطلب یہ کہ قرآن مجید ہم کہیں سے کھولیں. میں یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ آلریڈی پریپیئر ہو کے آ رہے ہیں, آپ جو ہے تیاری کر کے آ رہے ہیں, ایک تفسیر کی ایک کتاب آپ رکھ رہے ہیں, آپ جو ہے کسی چیز کا مدد لے رہے ہیں. بھئی آپ نے 1.5 سال لگایا ہے, کیا ہم کو یہ چیک کرنا ہے کہ جب ہم کبھی قرآن مجید کی کوئی تلاوت کریں, کہ کوئی ہم کو دل بولا کہ بھئی چلو ہم سورہ واقعہ پڑھتے ہیں, چلو سورہ فرقان پڑھتے ہیں, ہم کوئی بھی سورہ جب آدمی کے دل میں آتا ہے, کوئی بھی قرآن, اب مان لیجئے کہیں ہم جا رہے ہیں تو ہم کو جو ہے اس موقع پہ ہم کوئی قرآن مجید کی کوئی تلاوت کر رہے ہیں, تو وہ ہم کو کیا سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, وہ مجھے چیک کرنا ہے, وہ دیکھنا ہے. ویسے بھی رینڈملی ہم قرآن کھول لے کے دیکھیں تو بھی ہم کو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ہاں, تو ابھی سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ اس کی عادت ڈالیے, تو اور پھر وہ ان ایکسپیکٹڈ ہم لوگ کریں گے. آپ یہ سمجھیں کہ بھائی دوسرا پارے کا جو ہے آیت نمبر 4 پڑھ رہے ہیں, ممکن ہے اس کے بعد ہم چوتھے پارے کی 10ویں آیت پڑھیں, سورہ انعام کی جو ہے 25ویں آیت پڑھیں, اس کے بعد ممکن ہے سورہ توبہ کی جو ہے 15ویں آیت پڑھیں. تو ایسے, اور پھر اس وقت میں آپ سے یہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایپ نہیں دیکھنا ہے, کوئی ڈکشنری نہیں دیکھنا ہے, کوئی یہ ترجمہ تفسیر نہیں دیکھنا ہے. آپ بالکل گوگل نہیں کریں گے تفسیر کی کوئی کتاب. آپ اپنے طور پہ یہ بتائیے کہ صاحب کہاں آپ کو پرابلم ہو رہا ہے. تو بس جیسے آپ کہہ لیجئے میں خود ایک سرجری سے گزرا ہوں, تو میں جب بیڈ پہ تھا ڈاکٹر کے پاس گیا 6 مہینے کے بعد, اس نے کہا کہ بھئی آپ یہ سب جو آپ کے یہ جو کیا کہتے ہیں جن کے سہارے پہ آپ چل رہے ہیں وہ سب چھوڑ دو, آپ اپنے سے چل کے بتاؤ, آپ چل کے بتاؤ. آپ کو جو پرابلم ہے واکنگ میں, کہیں آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ بھئی یہ آواز آ رہی ہے یا ایسا ہو رہا ہے, تو پھر میرے کو بولو کہ میں اس کے بارے میں ہم لوگ اسکیننگ کریں. تو وہ بندہ مجھے چلا کے اس کو کر کے بتایا, تو میں نے کہا نہیں نو پرابلم, اب تو کہیں کچھ نہیں ہے. تو آپ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ کانفیڈنس آ جائے, کہ آپ کے اندر یہ قابلیت, آپ کے اندر یہ خود اعتمادی آ جائے کہ ہاں, البتہ ایک چیز ضرور رہے گی آپ کے لیے بھی, میرے لیے, مرتے دم تک ہر انسان کے لیے قرآن کا ایک چیلنج ہے, وہ ووکیبلری کا رہے گا. اس سے آپ پریشان مت ہوئیے, وہ ووکیبلری آپ کو نہیں آتی ہے, ڈکشنریز ہیں اس کو ہم دیکھیں گے, وہ مسئلہ نہیں ہے.
وہ تو قرآن کے بڑے سے بڑے مفسر، بڑے سے بڑے محدث، بڑے سے بڑے تو اپنی زندگیاں، ان کے لیے بھی قرآن مجید الفاظ کے اعتبار سے ایک چیلنج ہے. تو ذخیرے الفاظ کا تو مسئلہ اپنی جگہ رہے، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسی ہو رہی ہے اس کو ہمیں چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. آمین آمین. تو پھر ہم لوگ کل ملتے ہیں. مولانا بولیے. ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، تو جو صغیرہ ہے یہ صغیرن یہ بھی فی الحال ہوگا کیا مولانا؟ ہاں ہاں، بہت اچھا بہت اچھا. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرن ہے، بہت اچھے. تو صغیرن جو ہے وہ حال ہے کہ اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کی ہے. تو صغیرہ جو ہے یہاں پر حالت ہے. بہت اچھے، ماشاء اللہ. اور بھی آپ کے بھی کوئی مشورے ہیں تو آپ دیجئے کہ ہمارا یہ جو یہ لاسٹ منتھ ہے تو یہ ہمارا کتنا اس کو ہم پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں، اس کو جو ہے جو چیزیں ہماری ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں تو اس کو ہم کیسے اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ کے بھی کوئی مشورے ہیں تو آپ ضرور دیجیے. آپ ضرور مولانا بتائیے. سبق نمبر 34 کے بعد ہم لوگ مطلب اس کے بعد ایکسٹرا جو ہے وہ پڑھنے کا نہیں، وہ نہیں پڑھیں گے ہم لوگ. سبق 34 کے بعد بھی کچھ اور ہے نا مولانا؟ وہ نہیں ہاں، وہ 34 کے بعد وہ پلورل کے فارمز ہیں. اچھا 34 کے بعد صرف پلورل کے جو ابھی تک شروع سے پڑھے ہیں نا آپ لوگ بک 2 میں، بک 3 میں، کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ زاہد زہد جو ہے مصدر فارم ہوتا ہے، تو اسی طرح 56 جو ہے پلورل کے فارم ہے. وہ ریفریشمنٹ ہے وہ. ہاں ہاں، وہ مسئلہ نہیں، وہ ایک آدھے گھنٹے میں ہو جائے، آپ لوگ خود پڑھ دیں گے. جی مولانا انشاءاللہ. میں نے سب دیکھ لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چلیے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. مع السلام یا اخوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا بھی سبق ہے، یہ ریکارڈ ہو چکا ہے نا؟ یہ جی ریکارڈ ہو گیا تھا. یہ ریلے بھی ہوگا کیا یہ؟ اس کو ریلے کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا، باہر جب بھی ہو رہا بہت اہم ہے اصل میں. جی جی انشاءاللہ بھیج دوں گا، میں بھیج دوں گا. السلام علیکم. شکرا لکم، مع السلامہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.